is that all over the world, the objective of democracy is to get good leaders into the parliament, to avoid undesirable people, and especially in India, where people say that there is criminalization of politics. That is why about 15 years ago, I filed a petition in the Supreme Court on Nota. And a decision was given by the court, and that is why Nota has become part of the ballot paper or the EVM. But today, the way Nota is, we are one of the largest democracy in the world, but question is, are we a good democracy anywhere? And the people, many countries have right to recall. Recall always happens after the event. Damage is done, now you recall. So what we have filed was right to reject. And the dilemma that people are facing today is that if they go to vote, who do they vote for if all candidates are undesirable or criminal, or for whatever reason they are not the right candidates in the national interest? So they have a choice only to two. One is to pick the most or the least undesirable candidate out of the two. So you are choosing out of the least evil. Or abstain, not to vote. Or even go to vote and pick Nota. Even if they do pick Nota, nothing happens. It is absolutely toothless. Therefore, if they do go to vote and make the least desirable candidate win, now the question is, that person won. Fair and square. Question comes, did you want him to win? 2, does he represent you? 3, is he in the national interest the best person to serve the country? Answer is none of the above. Now the other option that they have is to abstain from voting, and if they do not go to vote, they're not a good citizen. So either way, this is the dilemma people are facing, and the average voting in the country is about 50%. So what we have requested now in the latest petition with the Election Commission is that we should empower the citizens of this country. Today, if they don't go to vote, that is called passive protest. They are protesting against these candidates, but in a passive manner. So we're saying give a right for active protest. So they go in, and Nota should be treated as a candidate. Nota is a candidate. And if Nota gets the highest number of votes, then means the majority people have rejected all of them. People have rejected those candidates. This is democracy. That means if Nota wins, then all candidates from that constituency for that one election only and for one upcoming election should be disqualified. Only from that one constituency. Now, they have a right to stand up to get votes, and the people have the right to reject them, and they rejected. So hence, they should be disqualified. Now, what will be the advantage of doing it? It will open the doors for good candidates to walk in. There can never be a vacuum. Always, automatically, good people will come into the political system, even as independents for that matter. And number 2, it will also force the political parties today to field good candidates, because when they know that people can actually reject the criminal element, they will have no choice but to field good candidates, and if good candidates are fielded, they have a better chance of winning. So it will push all the political parties to straighten up and bring clean candidates if they want to win, otherwise they will be kicked out. Because today, people vote for both criminals. You look at UP election, you look at Tamil Nadu election. For the last 20 years, Mayawati Mulayam, Mayawati Mulayam, Mayawati Mulayam, and their Anna Amma, Anna Amma, Anna Amma. What is it? You see, people never voted for a party or a candidate to come in. They were so fed up of these people and the criminalization of everything that they wanted to kick them out, but they didn't want to have them in. But they got them in. By default, is this democracy? This is terror. Hear the word. This is terrorizing the citizens of your country. This is literally terrorizing the citizens of this country. So this is a mockery of democracy.
this is not a good democracy, this is disgraceful. So the whole objective of Nota is that we must empower our citizens to actively protest and bring good candidates into our leadership system, and this ought to become the law if we want to see a united India on the world map. I repeat, if we want to see united India on the world map in 15 years from now or 10 years from now, the way we are heading is disaster. But if we want to see a united India, we've got to bring good people into our leadership who put the country's interest above their own, and they have no choice but to serve the country. And to do that, we must make Nota a law in this country. With those words, I will just stop right here and I'll open it for questions. So it is proposal. I'm sorry, sir? It is proposal to receive. It is, the Supreme Court has given a direction that we should go to the Election Commission and let the Election Commission give direction further. And even if you go into the last election that took place in the 5 states, almost 3% votes went to Nota. Almost 3% votes went to Nota. And that only went when they protested. And when they know that a Nota is a useless vote and that vote is going to waste. But when they know that their vote will not go to a waste, people will go and vote for Nota in herds and reject all these candidates. That's about it. You mean मैं हिंदी में बोल देता हूँ जी, आप कहें. You mean gathering all those who are interested, those who are not interested, to must go the booth for Nota? Sir, going to vote or not going to vote is a citizen's decision and citizen's responsibility. Now, even if a responsible citizen wants to go vote there, उसके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि साहब किसको वोट करूं जाके? Who do I vote for? They are all criminals or disqualified, unqualified in some manner or the other. And आज आप देखें, हालचाल यही चल रहा है कि आप 15 चुनते हैं, 15 लोग स्टेज पे हैं, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कहते हैं कौन प्रधानमंत्री, who is the right person? We don't know. You tell me one thing, ऐसी scarcity of leadership कभी कहां पर आज तक हुई है इंडिया में? I mean, sadly, it is cancer. And gradually the system has been deteriorating, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, and जैसे हर पीढ़ी गुजरती जाती है, अब लीडरशिप और गंदी होती चली जाती है और क्रिमिनलाइजेशन होती चली जाती है. साहब, सरदार पटेल के बाद इस देश में अच्छा लीडर मिला ही नहीं हम लोगों को. We need back again good leadership. अगर हम लोग को डेमोक्रेसी बचानी है अपनी, there is no other answer, but we have to make a strong movement to make Nota a law. That's all, sir. जी. You go to law commission. जी सर. You go to law commission also. Law commission also. अच्छा ठीक, मैं हिंदी में बोल देता हूँ एक बारी. देखिए ऐसा है, 15 साल पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और उसके बेसिस आधार के ऊपर हमारे को नोटा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था और बैलेट पेपर के ऊपर नोटा छपता है. तो आज की तारीख में अगर लोग, सबसे बड़ी दुविधा ये हो पड़ चुकी है कि कोई इंसान जाता है वोट करने के लिए तो उसको बहुत परेशानी ये है कि सभी कैंडिडेट्स अच्छे नहीं हैं, कोई क्रिमिनल है, कोई फलाना है, दे आर नॉट गुड कैंडिडेट्स. तो अब कुछ समस्या है कि साहब किसको जाके वोट करें. तो सबसे घटिया जो क्रिमिनल होता है उसी को जिता देता है साहब. अब सवाल ये है, उसको जिता दिया उसने, क्या उसकी वो चॉइस थी? क्या वो कैंडिडेट इसको रिप्रेजेंट करता है? क्या देश के हित में सबसे अच्छा कैंडिडेट वही था? आंसर इज नो. अगर ये हाल है और दूसरी चॉइस उसके पास क्या है कि वोट करने नहीं जाए, एब्सटेन करे वोट करने से, और अगर वोट करने नहीं जाता तो दुनिया कहती है साहब आप तो अच्छे नागरिक नहीं हो, आपने वोट ही नहीं किया, और जाके उसको जिता देता है. तो जानते हो लोग क्या कहते हैं, आप ही ने तो जिताया था उसको, आप ही ने जिताया था. तो ये समस्या आ गई है आज इस देश के अंदर. इसी वजह से अब तकरीबन हर एक पार्टी में यही हाल है. अब मैं इसलिए कह रहा हूं, एक पार्टी से क्रिमिनल निकलता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरी से निकलता है वापस इधर आ जाता है, इधर से जाता है फिर उधर जाता है. सेम पीपल आर चर्निंग इनटू वन पार्टी इनटू द अदर. यू डोंट सी अ न्यू फेस.
आपके पास अच्छे लोग हैं कहां पर, दिखते कहां हैं? आज लोग कहते हैं कि आप हु इज योर बेस्ट कैंडिडेट, आई वुड से नन ऑफ द अबव, आई वुड से नन ऑफ द अबव। अगर ऐसा हाल नन ऑफ द अबव हो जाता है तो सर यू हैव नो चॉइस, ये देश को कोई सुधरने से रोक नहीं सकता। अच्छे कैंडिडेट आएंगे ही आएंगे उसके अंदर, कैसे नहीं आएंगे साहब? और पॉलिटिकल पार्टीज विल बी फोर्स्ड टू फील गुड कैंडिडेट्स। तो आज इसी को हम लोग को एक सार्थिक रूप से इसको असलियत लाना चाहते हैं। और अगर ये हम लोग को डेमोक्रेसी बचानी है तो वी मस्ट मेक नोटा इनटू अ लॉ, एक कानून इसका बनना चाहिए। इसी आधार पर डॉक्टर हर्ष पाठक भी यहां पे हैं, कोई आप सवाल करना चाहें? ही इज अ very good constitutional attorney, and more important than that, he is a committed citizen for the country. He is a patriot. He is doing it free. He is not taking any money for it. He is putting his time effort. हम भी अपना time effort लगा रहे हैं, हमारे को कोई इसमें बल्कि अपने पॉकेट से 4 पैसे चले जाते हैं। So bottom line is that we have to come forward and take this movement for the betterment of our children and ourselves itself. जी आपसे सवाल है मेरा। जी सर। जैसा कि आपने बताया कि कोई एक अपराधी पहले एक पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी में चला जाता है, फिर तीसरी पार्टी में। जी सर। आप खुद एक समाज सुधारक रहे, अपने शब्दों से दुनिया को बदलने का काम किया है आपने। जी आप कैसे देखते हैं देश की राजनीति को, क्या होना चाहिए? साहब, देश की राजनीति अगर सही होती तो नोटा हम फाइल नहीं करते, नोटे की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से देशों में राइट टू रिकॉल होता है साहब, रिकॉल होता है आफ्टर द इवेंट, डैमेज होने के बाद आप रिकॉल करेंगे। आपको इसका मतलब है मरने के बाद दवाई दीजिए उसको। अरे मरने के बाद दवाई देने का क्या फायदा? हम कह रहे हैं रिकॉल छोड़िए, आप रिजेक्ट कीजिए, आप उसको इलेक्ट ही मत कीजिए। आप अगर आपको मालूम है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने दिख रहा है, 20-20, 30-30, 40 मर्डर्स, रेप्स उनके ऊपर हुए, लगे हुए चार्जेस, मर्डर्स एंड रेप्स, बट फिर भी वो जीत जाते हैं साहब, क्योंकि कहते हैं कन्विक्ट थोड़ी हुआ है, ही इज नॉट कन्विक्टेड। व्हाट अ जोक। तो नहीं भी हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको मालूम है साहब, दुनिया में हर चीज का लोगों को मालूम होता है लेकिन सबूत नहीं दिखता, इसलिए सारे क्रिमिनल भी छूट जाते हैं, और यहां तो सबूत भी मिटा दिए जाते हैं। तो आपने जो बात कही है साहब बिल्कुल सही है। बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू अ लॉ, और जब तक अच्छे कैंडिडेट नहीं आएंगे साहब, आप ही बताइए कि हम लोग का भविष्य क्या है? सर कहां से आएंगे वो? साहब हम ही में से निकलेंगे, और इसके लिए लोग सब शिकायत करते हैं, हमारी गलती नहीं है, सिस्टम खराब है, हमारी गलती नहीं है, सिस्टम खराब। कोई साहब जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, जानते हैं सब गड़बड़ होती है, कहते हैं आपकी गलती नहीं, आपकी गलती नहीं, सिस्टम खराब है। अरे सिस्टम बनाया किसने है? सिस्टम बनाया किसने है? और दूसरी बात, हम सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं ये नोटा की, ये सब हम सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं, और यही से एक रास्ता निकलेगा कि अच्छे लोग आएंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। दैट्स ऑल। होगा उसका कोई प्रावधान अभी हमारे पास नहीं है, तो हमारी प्रक्रिया सिर्फ इसी गैप को पूरा करने की है कि नोटा शुरू हुआ, और अगर नोटा बैलेट पेपर में आ गया और नोटा को मैक्सिमम वोट्स मिल गए तो क्या होगा, उसके लिए जो एक रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने दिया गया है कि प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, कि अगर किसी इलेक्शन में नन ऑफ द अबव ऑप्शन को मैक्सिमम वोट मिलते हैं तो उस इलेक्शन को कैंसिल किया जाए। उन कैंडिडेट्स को नेक्स्ट अपकमिंग का इलेक्शन में, जो कि 2-3 हफ्ते में जनरली एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीपोल करने के लिए आपको टर्न अराउंड 21 डेज का कुछ एक उनका अपना कैलकुलेशन होता है, बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, चीजें होती हैं, मूव करना होता है। टर्न अराउंड टाइम में जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें ये कैंडिडेट्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, which will open the door for the new candidates to come in। ये एक तरह से एक तो नोटा की, क्योंकि जब हम आज जाते हैं तो हम सोचते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि नोटा 2%, 3% हो रहा है, कई स्टेट्स में नोटा विनिंग एंड लूजिंग मार्जिन्स ऑफ कैंडिडेट से ज्यादा है। 200-300 के वोट से मंत्रों से लोग हार जीत रहे हैं, और 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 नोटा के वोट पड़ रहे हैं। तो उसी चीज को आगे ले जाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उस प्रक्रिया में नोटा बैलेट पेपर तक आ गया, अब नोटा जीतेगा तो क्या होगा, उस विषय को हम वापस लेके गए हैं।
जो कि एक बहुत रीजनेबल सब्जेक्ट है। और अगर जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि अगर नोटा मैक्सिमम होगा तो हमें ऑप्शन मिलेगा 20 दिन बाद नए लोगों को चुनने का, और दिस इज द वे। एक बार चीजें नहीं लगती हैं बट वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आते हैं, लोगों में एक्सेप्ट होते हैं, और वो कभी नोटा का ऑप्शन नहीं था, जो नोटा आ गया। अब नोटा के साथ जब लोगों के पास ये लगेगा कि वो एम्पावर्ड है सिलेक्शन को कैंसिल करने के, वो एम्पावर्ड है फ्रेश लोगों को लाने के, वो एम्पावर्ड है 20 दिनों में चेंज देखने के, तो ये एक तरह से नोटा के ऑप्शन को एम्पावर करेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करेगा और पॉलिटिकल पार्टीज को सोचेगा इस चीज के लिए। जी जी, और मैं एक चीज का और ऐड करना चाहूंगा जो डॉक्टर पाठक ने कहा है। एक मिनट साहब, एक मिनट। कुछ लोगों का एक छोटा सवाल होता है कि अगर इलेक्शन दोबारा से होगी तो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन नहीं बढ़ जाएगी, ये भी एक सवाल आता है साहब। अब वो सवाल उसका हमने जवाब दिया है पिटीशन में, वो ये है, आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज, व्हाट इज मोर एक्सपेंसिव, 5 साल के लिए एक गलत कैंडिडेट बैठा रहे, इज दैट मोर एक्सपेंसिव, और कॉस्ट ऑफ वन न्यू कैंडिडेट इलेक्शन। आपकी एक नई इलेक्शन हो जाए, बहुत सस्ते में छूट जाइएगा, बजाय आप एक घटिया आदमी को 5 साल वहां रखने के लिए। So that is one major thing. So let's open it to questions that you have. Sir, you have एक मिनट साहब, उनका एक क्वेश्चन है जी। इस चुनाव के लिए आने में नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं जब बोल रहा हूँ अभी तक, और है जी नहीं, शायद अब राय नहीं बदलेगी। नहीं साहब, मैं बात ये है, मैं इस वजह से आपको ये शायद कहता हूं, पता क्यों? दिल करता है लेकिन रुक जाते हैं, दिल करता है रुक जाते हैं, दिल करता है रुक जाते हैं। बात यह है, तकलीफ तो होती रहती है। शायद मेरे को छोड़ दीजिए, आप सबके अंदर दिल करता है, आप भी रुक जाते हो। आयु विद सभी, हम सब के अंदर वही भावना है और हम सभी परेशान हैं। नहीं साहब, मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट रह चुका। नहीं साहब, मैं तो संकोच से बोल रहा हूं, पता क्यों? दिल भी करता है फिर रुक भी जाते हैं, दिल भी करता है रुक जाते हैं। तो सब पार्टियां से, तो कई पार्टियों से फीलर आए हैं हमारे को, कईयों से आए हैं, ऐसी बात नहीं। सर आपका क्या सवाल है सर? समझा है, और उन्होंने कहा है कि इस विषय पर निश्चित रूप से आगे जो है वो समन्वय किया जाएगा दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ में, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर इस पर किया जाएगा। साथ ही साथ हमने जो बात कही है, ये बात लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी है, तो लॉ कमीशन रिपोर्ट को भी उसमें रेफर किया जाएगा। तो एक तरह से एक एक्शन आइटम्स की लिस्ट में ही कम से कम ये विषय आ गया। और जो हमारा मुख्य मुद्दा था, जो खेरा साहब से जब शुरुआत में बात हुई, तो उनका मुख्य मुद्दा ये था, देखिए प्रक्रिया कानून इसके लिए एक संस्था है जिस पे हमारा पूर्ण विश्वास है, जो एक नागरिक की तरह से कंसर्न होने के बाद वो किसी विषय को सामने ला सकते हैं, सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं, बहस का विषय कर सकते हैं कि कम से कम उस विषय पे चर्चा हो और कुछ ना कुछ उसका निष्कर्ष निकले। इस विषय को उनके सामने रखा गया, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के बहुत सारे आदेशों में, निर्देशों में भी था, और चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने भी और उनके जो स्टाफ है उन्होंने भी इसको सकारात्मक रूप से लिया। यह सुनील अरोड़ा जी से हमारी मुलाकात हुई थी 2 हफ्ते पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, एंड ही वाज वेरी रिसेप्टिव, और ही सॉ द मेरिट टू दिस, एंड दे आर लुकिंग टू प्रोसीड फर्दर नाउ ऑन दिस। सॉरी सर, आपको कब तक उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसको इंप्लीमेंट करेगा? केड़ा जी 3-4 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा था साहब, उन्होंने हम लोग से 3-4 हफ्ते का समय मांगा है, 3-1 हफ्ते का। बाकी नेक्स्ट वीक उनसे हम दोबारा फॉलो अप करेंगे, एंड लेट अस टेक इट फ्रॉम देयर। हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आने वाली लोकसभा इलेक्शन में ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट यही है। अगर आने वाली इलेक्शन में अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5% के अंदर आज किस तरीके से बदलाव आ रहा है, और इलेक्शन एकदम चेंज हो जाएगी, हो सकती है। सो आई थिंक our objective would be to get it implemented in this upcoming election. केड़ा जी, ये सर दबाने वाले कौन लोग हैं जो राजनीति को पसंद नहीं करते या अपराधियों को पसंद नहीं करते? साहब, उनको अगर कोई कैंडिडेट नहीं पसंद आता है तो उसके लिए मजबूर होकर जाके किसी को वोट नहीं देना पड़ेगा उनको।
वो नोटा चुन सकते हैं। आप मान लीजिए आपको इन 6 कैंडिडेट से कोई पसंद नहीं आता है, तो क्या करोगे आप? तो या घर बैठ जाओगे या जाके उसको गलत बटन दबा दोगे। तो अगर नोटा चुनते हो आप और ज्यादा लोग आप जैसे हमारे जैसे हो, तो देन इनको क्लीन अप कर दिया जाएगा। तो नोटा का भी तो फायदा नहीं हो रहा ना दबा के। क्यों नहीं होगा सर? नोटा का भी तो उसका रिजल्ट नहीं आता ना कहने का। नहीं, उसी को तो ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं ना। ये नोटा की जो एप्लीकेशन हमने डाली है, हाँ टोटल ही होता ना उसका तो खाली। नहीं भैया, अगर नोटा जीत जाएगा ना तब ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी जो आप कह रहे हैं प्रक्रिया नहीं है, अभी तक पता ही नहीं। अभी नहीं है, उसी को हटाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, उसी को हटाने के लिए हमारी याचिका जो पिटीशन है उसी को दाखिल किया सर। नहीं सर ये That's it. सारे कैंडिडेट्स जो मैंने रहे तो नोटा दबा रहे। अगर अनडिजायरेबल है तो आप डिजायरेबल नहीं है आप जी करवा रहे हैं। जी तो उसके बाद सर नए कैंडिडेट्स को टाइम मिलेगा उसमें। 20 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाती है। सब्सक्राइब करें।